Hello guys. This is a really quick video about airport engineering, and there are a few topics which we are going to look upon. The basic objective of this video is to give you a quick revision of the questions which can be asked in the internship of Airport Authority of India. So the basic outline of these notes, short notes, will be like each term. The questions will be related to the terminology. Means to say, if there is any term coming between the line, then I will tell you the meaning of that term also. Suppose there is a something written about mean sea level, then what is the meaning of mean sea level, that I will also explain. So there are about 20 pages, so I think that this much is good enough for your revision. So let's start. So basically they can ask in the interview that the basic parameters about civil engineering, or we study about runways, that whatever the questions which are asked, the data related to those questions. So in the civil engineering, we often have questions in the gate examination which is related to the elevation correction. So what happens in elevation correction is that there is a body, that is ICAO International Civil Aviation Organization, that recommends the basic runway length increase by 7% per 300 rise above mean sea level. Means to say, whatever the mean sea level is there, and the location of our airport is somewhere else. Now if the location of the airport, or the difference between the level of our airport site and the mean sea level which we are taking as a reference, if that is suppose there is 1500, then for every 300 we increase 7%. So we will increase 3 times. Means to say 21% of the length we will increase. What is of the runway length, whatever the runway length will be there, we will increase that by 7% for every 300 meter. What is MSL, or mean sea level? So mean sea level is basically the average level of ocean surface calculated as arithmetical means of hourly tides, and then taken over extended period of time. That is called mean sea level. Means to say, simply mean sea level जो होता है वो एक लंबे स्पान का डेटा होता है, एक लंबे समय का डेटा होता है, जो समुद्र के जो सरफेस होती है, समुद्र के पानी का जो लेवल होता है, उसको अपन एवरेज करके निकाला जाता है. इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद जो है, जो हमको दिया गया है, दैट्स टेम्परेचर करेक्शन. टेम्परेचर करेक्शन, व्हाट इज हैपेंस विद टेम्परेचर करेक्शन? सो देयर इज अ वेरी सिंपल फार्मूला विच इज 15 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 0.0065 मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन एलिवेशन अबव मीन सी लेवल. मीन्स से व्हाट इज द चेंज हैपनिंग इन दैट. सो इफ अगर आपको चेंज निकालना है, इसका मतलब दो टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस होगा. तो दो टेम्परेचर के बीच का, कौन से दो टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस होगा? तो दो टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस होगा. पहला तो होगा आपका लोकल बॉडी टेम्परेचर और एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर. मतलब कि जहाँ पे आपका एयरपोर्ट है उस साइड का क्या टेम्परेचर है, और उसके बाद इसको आप माइनस करेंगे फ्रॉम द जो एलिवेशन मीन से लेवल पे जो टेम्परेचर है उससे. ART अगर आपको नहीं दिया, वैसे तो क्वेश्चंस में जनरली दिया रहता है, और अगर नहीं दिया हुआ है तो आप टी इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं. TA + TM - TA डिवाइड बाई 3. TA होगा मंथली मीन ऑफ एवरेज डेली टेम्परेचर, और TM होगा मंथली मीन ऑफ मैक्सिमम डेली टेम्परेचर. सिंपल टर्म्स है, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा समझने के लिए नहीं है. अब हमारा जो ICAO है रिकमेंड्स दैट बेसिक रनवे लेंथ शुड बी इंक्रीज बाई 1% पर एवरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन द ART. मतलब मान के चलिए, अगर आपका जो चेंज इन टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड से तब माइनस करेंगे, तो उससे कुछ 7-10 जैसे भी आएगा, तो उसमें आप उतने परसेंटेज से आप अपनी लेंथ को, रनवे की लेंथ को इंक्रीज़ कर देंगे. अब यहाँ पे थर्ड टर्म जो हमें यहाँ पे आता है, ये हमें ये कहता है दैट इफ़ द टोटल करेक्शन ऑफ एलिवेशन एंड टेम्परेचर, मतलब जो हमने एलिवेशन करेक्शन किया और जो हमने टेम्परेचर करेक्शन किया, अगर ये टोटल करेक्शन जो है ये 13%, ये 25-35% से कम है टोटल, जैसे आपके रनवे की लेंथ है, करेक्टेड रनवे की लेंथ जो आपने निकाली होगी, अगर वो 35% से कम आती है, तो आप कोई भी करेक्शन नहीं लगाएंगे विंड के लिए, और विंड और टेम्परेचर इन दोनों के लिए कोई भी करेक्शंस नहीं लगाएंगे. और अगर ज़्यादा आती है तो फिर साइंटिफिक स्टडीज़ उसमें की जाएंगी, और उसके बाद अलग मेथड्स हैं जो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ग्रेडियंट करेक्शन में हमारा यही होता है दैट रनवे लेंथ शुड बी इंक्रीज्ड बाय 20% फॉर एवरी
20% फॉर एवरी 1% इफेक्टिव ग्रेडियंट। मतलब अगर 1% इफेक्टिव ग्रेडियंट में चेंज होता है तो रनवे की लेंथ 20% आप बढ़ा देंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप एयरपोर्ट के पार्ट्स के बारे में बताइए, तो रनवे, टैक्सीवे, एप्रन डिज़ाइन, रोडवे, कर्ब साइड पार्किंग लॉट, पेवमेंट डिज़ाइन, ड्रेनेज डिज़ाइन, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन जैसे फाउंडेशन और ब्रिजेस का, एयरफील्ड की लाइटनिंग का डिज़ाइनिंग होता है, सर्वेइंग और जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशंस। तो ये सब जो चीज़ है, ये सब मतलब हम सिविल इंजीनियर्स कर सकते हैं इन एयरपोर्ट में। फिर उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट है रेडियस ऑफ टैक्सीवे। इसके लिए यहाँ पे 3 एम्पेरिकल फार्मूलाज दिए हुए हैं। R=V², 125F, R=0.388 W² डिवाइड बाई T/2 - S, और यहाँ पे थर्ड कंडीशन दी हुई है। तो दो एम्पेरिकल फार्मूला। यहाँ पे F जो है वो फ्रिक्शन फैक्टर होता है, F=0.13, W होता है व्हील बेस, मतलब जो एयरक्राफ्ट है उसका व्हील बेस क्या है, T होता है विड्थ ऑफ टैक्सीवे, मतलब टैक्सीवे की विड्थ क्या है, और एस होता है ट्रेड ऑफ लैंडिंग, जो लैंडिंग की ट्रेड है वो कितना है। तो S=, गियर डिवाइड बाई 2 + 6। यहाँ से आपको एस की वैल्यू मिल जाएगी। गियर की वैल्यू उसमें दी हुई रहती है, कितने गियर्स का आपका जो आपके प्लेन में कितने गियर्स वाले टायर्स हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ टायर्स हैं। T/2 - S, विड्थ आपको जनरली क्वेश्चन में दिए रहे होते, और इन दोनों में से जो बड़ी वाली वैल्यू होगी उसको अपन लेंगे। थर्ड कंडीशन में हम चेक कर लेंगे कि जो आर जो है वो सुपरसोनिक और सबसोनिक विमानों के लिए आपका मिनिमम 180 और 120 होता है। सुपरसोनिक और सबसोनिक आप जानते हैं कि जो अगर कोई विमान आवाज़ की रफ्तार से तेज़ उड़ सकता है तो उसे सुपरसोनिक कहेंगे, और आवाज़ की रफ्तार से स्लो को हम सबसोनिक कहेंगे। इसके बाद हम पेवमेंट डिज़ाइन के बारे में आ जाते हैं, क्योंकि रनवे और एयरपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पेवमेंट ही होता है, और जो रनवे हमारा होता है वो एक टाइप का रोड ही होता है जिस पे एयरक्राफ्ट लैंड करता है। एक बहुत ही एडवांस टाइप ऑफ रोड आप कह सकते हैं। तो उसको डिज़ाइन करने के लिए हम पेवमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि हमारे पास 4 टाइप के पेवमेंट है: फ्लेक्सिबल, रिजिड, सेमी रिजिड और कंपोजिट। अब फ्लेक्सिबल, रिजिड, सेमी रिजिड और कंपोजिट, इन 4 टाइप के पेवमेंट्स में आप पहले हमने पढ़ा है फ्लेक्सिबल पेवमेंट। फ्लेक्सिबल पेवमेंट का हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, और इसमें इसकी 4 लेयर्स दी गई हैं: सरफेस, बेस, सब बेस और सब ग्रेड। अब इसमें जो सरफेस लेयर है वो हमारी बनी होती है डेंस बिटुमिनस मैकेडम से। अब ये डेंस बिटुमिनस मैकेडम क्या होता है ये हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। वाटर बाउंड मैकेडम और वेट मिक्स मैकेडम से हम बेस कोर्स बनाएंगे। ग्रैनुलर सब बेस से हम ग्रैनुलर सब बेस बनाएंगे, जो हमारी नॉर्मल सॉइल रहेगी वो सब ग्रेड में रहेगी। इसी तरह से हमारा है रिजिड पेवमेंट। रिजिड पेवमेंट में जो लेयर्स रहेंगी वो हमारे रहेंगी सरफेस, बेस और सब ग्रेड। सरफेस हमारा प्लेन सीमेंट कंक्रीट हो सकता है या फिर रेनफोर्स्ड कंक्रीट भी हो सकता है। बेस में हमारा ड्राई लाइम कंक्रीट होगा, और सब ग्रेड में सॉइल जो हमारी नॉर्मल सॉइल रहेगी वही रहेगी। अब इसके पहले हम जान लेते हैं कि बिटुमिन क्या है। हमें यहाँ पे डेंस बिटुमिनस मैकेडम के बारे में बात की, तो हम बिटुमिन जान लेते हैं कि बिटुमिन क्या होता है। तो व्हाट इज बिटुमिन? एस्फाल्ट और बिटुमिन इज अ स्टिकी ब्लैक एंड हाईली विस्कस लिक्विड इन अ सेमी सॉलिड फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम। मतलब एक पेट्रोलियम की सेमी सॉलिड फॉर्म है। ये नेचुरली भी मिलता है, इट मे बी अवेलेबल नेचुरली और मे बी रिफाइंड प्रोडक्ट, मतलब ये रिफाइंड भी हो सकता है और नेचुरली भी अवेलेबल हो सकता है। इट एक्ट एज अ बाइंडर, मतलब ये जो है एक बाइंडर की तरह ऐड करता है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट व्हाट इज़ वाटर बाउंड मैकेडम। मतलब वाटर बाउंड मैकेडम क्या होता है? तो वाटर बाउंड मैकेडम क्या होता है? इट इज़ अ डेंस एंड कॉम्पैक्ट कोर्स of a road pavement composed of a stone aggregate held together by a film consisting of gravel or screening with a minimum amount of water। मतलब ये जो है एक डेंस कॉम्पैक्ट कोर्स होता है रोड पेवमेंट का, जिसे हम स्टोन एग्रीगेट्स को आपस में पैक करके बनाते हैं। ठीक है, कोर्स एग्रीगेट की हमें यहाँ पे वैल्यू दी कि 90 mm से 45 mm का कोर्स एग्रीगेट होता है। सब बेस में जो है वो हैंड ब्रोकन एग्रीगेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। स्क्रीनिंग, स्टोन, ग्रेवल, मुरम, ये सब टर्म्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये आप ये देख ही सकते हैं कि बाइंडर मटेरियल, फाइन ग्रेन, उसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स 6 से कम होना चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद हम अगला पढ़ेंगे दैट व्हाट इज़ द वेट मिक्स मैकेडम। इसका क्या होता है? तो वेट मिक्स मैकेडम जो होता है दैट व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग अ लोड देयर नीड्स टू बी ले डाउन द बेस कोर्स मटेरियल राइट बिफोर हॉट मिक्स एस्फॉल्ट इज लेड। इट इज़ डन थ्रू ए प्रोसेस ऑफ वेट मिक्स मैकेडम। ठीक है, मतलब जब हम रोड बनाते हैं तो उसके पहले
पहले हमें एक बेस कोर्स बनाना पड़ता है, ठीक है, बेस कोर्स बनाना पड़ता है जिसके ऊपर आप एशफॉल्ट को डालते हो, और उस बेस कोर्स को बनाने के लिए हम वेट मिक्स मैकेडम का यूज़ करते हैं। ये जो प्रोसेस है ये हमारी वाटर बाउंड मैकेडम का थोड़ा सा एडवांस वर्जन, इसमें कम पानी लगता है। मटेरियल यूज्ड फॉर सब बेस आर प्रिपेयर्ड एंड इन द प्लांट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द साइट। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, द WBM के ऊपर कुछ एडवांटेजेस वो हम देख लेते हैं। द WMM रोड्स आर ड्यूरेबल, वाई W मतलब ड्यूरेबिलिटी इनकी ज़्यादा होती है। WMM ड्राई फास्टर देन WPM, मतलब ये जल्दी सूख जाते हैं और इनमें पानी की भी काफ़ी बचत हो जाती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे दैट हमने सीमेंट के बारे में पढ़ा, प्लेन कंक्रीट के बारे में पढ़ा, तो हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं दैट व्हाट इज़ वाटर सीमेंट रेशियो। तो वाटर सीमेंट रेशियो जो होता है ये रेशियो होता है वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सीमेंट, मतलब हमारे एक मिक्स में जितना पानी का वजन है और उससे आप डिवाइड कर दीजिए वेट ऑफ सीमेंट को, तो हमें वाटर सीमेंट रेशियो मिल जाएगा। वाटर सीमेंट रेशियो से हमारा क्या होता है, लोअर वाटर सीमेंट रेशियो लीड्स टू हायर स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी बट इट मेक्स द मिक्स डिफिकल्ट टू वर्क विथ फॉर्म। मतलब अगर हमारा वाटर सीमेंट रेशियो कम है तो हमारे लिए अच्छी बात है, लेकिन हमें जो मिक्स है उसको हैंडल करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और अगर हमारा वाटर सीमेंट रेशियो बहुत ज़्यादा है तो हमें बहुत मिक्स जो है वो बहुत लीन हो जाएगा, लेकिन उसको हम आसानी से हैंडल नहीं कर सकते। 0.45 टू 0.60 जो रेशियो है वो इस टाइप की रेशियो को अपन जनरली यूज़ करते हैं। टू मच ऑफ वाटर विल रिजल्ट इन सेग्रीगेशन ऑफ सैंड एंड एग्रीगेट कंपोनेंट्स फॉर्म द सीमेंट पेस्ट। Too much of water will result in segregation of sand and aggregate components from cement paste. Also water is not consumed by the hydration reaction leave concrete as it hardens, resulting in microscopic pores, bleeding. It will cause final reduction in sand. तो ये बात वही हो गई कि अगर ज़्यादा पानी हो जाएगा तो उस पानी का हाइड्रेशन प्रोसेस में यूज़ नहीं होगा, और अगर हाइड्रेशन प्रोसेस में उसका यूज़ नहीं होगा तो जो है वो वाटर एवेपोरेट हो जाएगा और पोर्स जो है वो हमारे मिक्स में हमारे जहाँ पे हमने सीमेंट को डिपॉजिट किया होगा वहाँ पे हमें दिखाई देंगे। तो इससे हमारी जो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है वो कम हो जाएगी। इसके बाद हम पढ़ते हैं ESWL, क्योंकि ESWL जो इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड मेथड जो है इसका यूज़ करके हम पेवमेंट्स के डिज़ाइन करते हैं। इसमें क्या होता है दैट इट इज़ डिफाइंड एज द लोड ऑन अ सिंगल डाई विच विल कॉज एन इक्विवेलेंट मैग्नीट्यूड ऑफ which will cause an equivalent magnitude of parameters such as stress strain deflection on the resulting from multiple wheel load in the same location। तो ये जो equivalent wheel load है इसके लिए ये इसीलिए डेवलप किया गया था। It was developed by ASHO मतलब American Association of State Highway Officials to test and establish a damage relationship for comparing the effect of axial carrying for different loads। मतलब ये जो टर्म है ये इसीलिए बनाया गया था ताकि हम अलग अलग एक्सेल के जो व्हीकल्स होते हैं उनको हम स्टिमुलेट कर सकें सिंगल टायर सिंगल एक्सेल वाले व्हीकल को लेके, और उनका हम निकाल सकें कि इसमें जितना इफेक्ट पड़ रहा है, इसमें ये जो इतना डैमेज कर रहा है ये मल्टीपल एक्सेल में कितना डैमेज करेगा। तो वो चीज़ निकालने के लिए हमने इसको यहाँ पे बनाया। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं दैट मेथड्स ऑफ पेवमेंट थिकनेस। तो हमें केवल मेथड्स का नाम याद रखना है। यार आप 4 मेथड्स होते हैं, ग्रुप इंडेक्स मेथड, CBR और कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो मेथड, ट्राइएक्सियल मेथड और बर्मिस्टर मेथड। हमसे पूछ सकते हैं कि बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल क्या होता है। तो बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज टू सपोर्ट द लोड अप्लाइड ऑन द ग्राउंड। इट बेसिकली इज द एवरेज कॉन्टैक्ट प्रेशर बिटवीन फाउंडेशन एंड सॉइल विच शुड नॉट कॉज शेयर फेलियर। मतलब वो लोड जो सॉइल सह सकती है विदाउट शेयर फेलियर उसको हम कहेंगे बेयरिंग कैपेसिटी। अब शेयर क्या होता है, यहाँ पे शेयर एक नया टर्म आ गया। तो शेयर क्या होता है, शेयर स्ट्रेस ऑफन डिनोटेड एज टाउ, इसको हम टाउ से डिनोट करते हैं। इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस कोप्लानर with the material of the cross section. Shear stress arises from force vector component parallel to the cross section of the material. Normal stress arises from the perpendicular. तो सिंपली आप इसको समझ सकते हैं एक एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे बुक है, ये कोई टर्म आप मान लीजिए। तो अगर मैं इस बुक के ऊपर परपेंडिकुलरली फोर्स लगा रहा हूँ, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगी। और अगर मैं इसको कोप्लानर फोर्स लगा रहा हूँ, इसके पैरेलल डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ इस डायरेक्शन में, तो ये शेयर प्रोड्यूस करेगी। ओके, यही आपको समझनी है। सिंपल आप उनको समझा सकते हैं कि क्या होता है ये।
इसके बाद हम पढ़ेंगे दैट व्हाट इज़ जियोपॉलीमर। तो जियोपॉलीमर जो है ये मेरा एक माइनर प्रोजेक्ट था, इससे रिलेटेड आपकी मेजर प्रोजेक्ट है, माइनर प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो जियोपॉलीमर कंक्रीट में क्या होता है? तो जियोपॉलीमर आर इनऑर्गेनिक टिपिकल सेरेमिक मटेरियल्स दैट फॉर्म लॉन्ग रेंज कोवलेंट बॉन्ड नॉन क्रिस्टलाइन अमोर्फस नेटवर्क होता है। जियोपॉलीमर जो बेसिकली ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी खुद की कोई बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, लेकिन अगर हम उन्हें कुछ स्पेशल कंपोनेंट्स के साथ यूज़ करें तो उनमें कुछ बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। तो जियोपॉलीमर कंक्रीट जियोपॉलीमर जो एक आपका सॉल्यूशन हो सकता है हमारे सीमेंट की प्रोडक्शन को, सीमेंट के कंटेंट को कम करने के लिए, सीमेंट के यूज़ को कम करने के लिए। जब हम सीमेंट कम यूज़ करेंगे तो इससे सीमेंट का प्रोडक्शन भी कम होगा और हमारा जो ओवरऑल कार्बन इमिशन जो है वो कम हो सकता है। तो उससे रिलेटेड ये एक टॉपिक था, तो जियोपॉलीमर कंक्रीट। ओके, नाउ आई विल continue this in the next video. Thank you.